Introduction. So good afternoon, everyone. I hope I'm clearly audible to you all. Yes, ma'am. Great. Thank you so much. So what we are going to do is for the next 1.5 hours that we are together, we will be using some sign language so that I can know that I'm going on the right path. So thumbs up means that yes, everything is going on well. हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है. इन बिटवीन इफ यू फील कि स्लो जाना है, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, you can simply raise your hand, ask me to stop, put something in the chat box so that I'll know कि मुझे slowly and I need to stop maybe for some discussion at some point in time when you feel that you have some query, some doubt, or maybe you want me to clarify more on a particular topic. So is Hindi, English, Marathi comfortable, or should I continue in English only? Ma'am, we'll prefer mixed language. Mixed language is okay, great. So हिंदी I'm going to इंग्लिश ज्यादा अच्छा रहेगा. हिंदी इंग्लिश. बिल्कुल. Yeah. सो हम हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में बात करेंगे, राइट? सो वंस अगेन आई एम गोना आस्क यू, इज माय वॉइस ओके? शुड आई प्रोसीड? या, थैंक यू सो मच सर. मोहद्दीन कुदारी सर ने मुझे एकदम तुरंत रिस्पांस दे दिया है. ऐसा रिस्पांस अगर हमें मिलता है सो वी गेट यस. थैंक यू पल्लवी मैम, थैंक यू सो मच. सो आई एम गोना stop my video and start my screen share. Let me know if the screen is clearly visible to you. So is the screen visible to you all? Yes, great. Thank you so much. I'm going in for the slideshow mode now. Yeah, I guess this is clearly visible to you. So we are going to talk today on something which is really important, not because we are teachers and our role over a period of time has completely changed from the Guru Shishya Parampara. We have traveled a long way from the Gurukul to the Google Classroom, and therefore the role of teachers completely changed. We are now mentors, we are now acting as counselors to our students, and therefore in the next 1.5 hours, we are going to be talking about how we as teachers mentoring और counseling हमारे colleges में हम लोग कैसा implement कर सकते हैं. अब कर तो हर कोई रहा है. mentoring and counseling ऐसी चीजें हैं, रादर आई से मेंटरिंग एक ऐसी चीज है जो हमारे नैक क्राइटेरिया में बहुत वेटेज रखती है. नैक क्राइटेरिया 2 में ये इंपॉर्टेंट है, एंड देयरफॉर प्रोबेबली each and every college is doing something or the other when it comes to the term mentoring. Is it right? That's what we do, correct? We Yes. try and have some sort of mentoring program, some sort of activities that we take, and we give it as a proof to the NAC when we submit our AQAR or when we do our SSR. But are we doing it only for the sake of this? No. We have to do it because we want to really, really not only improve ourselves, पर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का इसमें डेवलपमेंट हो. अगर हमारे स्टूडेंट्स का इसमें डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा है. एज ए टीचर आई फील दैट यस आई हैव डन समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स. So let us move ahead and talk about what are we going to learn in this session. So at the end of the session, we will try and understand the very fine line between mentoring and counseling. We will be able to understand the monitoring of the mentoring process, how the implementation is to be done, how further activities can be taken in the mentoring schemes that we are running in our colleges. We will also talk about establishing counseling centers at our institutes. कोविड ने हमें अगर कोई चीज सिखाई है अदर देन द डिजिटाइजेशन is about how it is valuable, important, essential for human beings to connect to one another, to be able to talk to someone, and therefore even though we may not be वेरी प्रोफेशनल काउंसलर्स, पर क्या हम कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा सेल हमारे इंस्टीट्यूट में चला सकते हैं जिससे हम
बच्चों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, जरूरतों को समझ सके, एंड एट द सेम टाइम वी मे बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. Obviously, we are going to talk about using mentoring and counseling for the NAC records. तो मैं रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में भी आपको दो तीन चीजें बता सकती हूँ. And eventually, we are going to talk about NEP 2020 and what role does mentoring play when it comes to the new policy that we are going to implement in the coming years. So far, so good. क्या मेरी speed okay है? Can I get some thumbs up? और कैन somebody unmute and tell me कि मेरी लैंग्वेज और मेरी स्पीड क्या आप लोगों को ओके है? थैंक यू पल्लवी जी फॉर लेटिंग मी नो दैट. Yes, madam. Great. Yes. Thank you so much. So let us try and understand that teaching, coaching and mentoring are not the same. हम कभी कभी इसको synonymously यूज कर लेते हैं. हम टीचिंग को कोचिंग में, कोचिंग को मेंटरिंग में यूज करते हैं, but all these three terms are completely different. So teaching basically, as we teachers are, we focus on जो हमको नागपुर यूनिवर्सिटी ने या कोई भी यूनिवर्सिटी ने एक सिलेबस दिया है, whatever the key concepts are, वो हम बच्चों तक पहुंचाते हैं. क्यों पहुंचाते हैं? दो वजह से पहुंचाते हैं. एक तो बच्चे को एग्जाम में पास होने के लिए हम मदद करते हैं ताकि बच्चा एक डिग्री ले सके. एट द सेम टाइम आगे चल के इफ द स्टूडेंट वांट्स टू मेक अ करियर इन एनी फील्ड, अब हमारे इस ग्रुप में साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, हर फील्ड से लोग होंगे, राइट? तो बच्चा चाहे साइंस का हो, बच्चा चाहे आर्ट्स का हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, अगर उसको उसमें करियर बनाना है, नॉलेज बहुत जरूरी है. सो एज अ टीचर वी ट्राई टू प्रोवाइड हिम विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द की पॉइंट्स, सो दैट जो भी उसका प्रोसेस है, आजकल तो हम लोग सीओपीओ मैपिंग करते हैं, कोर्स आउटकम होता है, प्रोग्राम आउटकम होता है. तो जो भी मेरे कोर्स का आउटकम है वो मुझे उस बच्चे तक बराबर से देखना है कि यस, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू 1 2 3 4 5. राइट? इज दैट ट्रू? दैट्स व्हाट वी टीचर्स डू. अब कोचिंग जो है, थोड़ा सा इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो रियल वर्ल्ड में होता है. जैसे स्पोर्ट्स के जो टीचर्स होते हैं, दे एक्ट एज कोचेस टू देम, राइट? जहां पे एक्चुअली वो लोग बताते हैं हाउ टू प्ले अ गेम, मे बी आइडेंटिफाई की पॉइंट, सिचुएशन, adjusting their actions. म्यूजिक के जो टीचर्स होते हैं, they sometimes act as coaches to them. मे बी कोई राग है, कोई आलाप है, उसे किस प्रकार का जॉनर का गाना सूट होता है, ये मैं बता रही हूँ. आई एम कोचिंग दैट इंडिविजुअल. maybe wherein a teacher acts as a coach to say a new teacher, या librarians जो होते हैं who are the powerhouses of the information center in the institutes, they help us in identifying maybe the right kind of journals. कि हाँ, आपको अगर जर्नल पब्लिकेशन करना है तो आप इस जर्नल में नहीं, इस जर्नल में कीजिए, ये ऑथेंटिक जर्नल है, ये फीस चार्ज नहीं करते हैं. So they help us in that process. So they act as coaches also at times. And mentoring, my friends, which focuses on individual, जहां पे हम उसका holistic development देखते हैं. From the very beginning हमारा ये aim होता है कि बच्चे का पूर्ण विकास हो. So a mentor does not talk about say maybe key concepts or key points, but he will talk about कि अच्छा में फील करियर करना है, अब तो बीकॉम का बच्चा है, तो आगे चल के एग्जैक्टली कहां पे जाना है. डू यू वांट टू गो इनटू बैंकिंग सेक्टर? डू यू वांट टू परस्यू एमबीए लेटर ऑन? डू यू वांट टू परस्यू एमकॉम? और क्या बच्चे तुम में वो क्षमता है? देखिए, हो सकता है बच्चा आपके पास आए और बोले मुझे एमबीए करना है, पर आप एज अ मेंटर, आपने उसको 3 साल देखा है, आप जानते हैं कि शायद ये बच्चा ना कर पाए बिकॉज ऑफ द एबिलिटीज एंड द एप्टीट्यूड दैट द स्टूडेंट्स हैज. So the mentor will try to show him the right path. That's what mentoring will be. और हम लोग ये करते भी हैं कुछ हद तक. हम एज ए टीचर हम मेंटर का रोल प्ले करते हैं. तो क्यों प्रीति मैडम ने पूरा 1.5 घंटे का सेशन रखा ऑन मेंटरिंग एंड काउंसलिंग?
The point is that even though as teachers we play the role of a coach and as well as a mentor sometimes, mentoring should not be simply कि हाँ महीने में एक आध बार किसी को राह दिखा दी. नो, दैट्स नॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. हम बात इस मुद्दे पे करने वाले हैं कि मेंटरिंग को हम हमारे पूरे एकेडमिक कैलेंडर में फिट करेंगे. हम जब टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे लाइब्रेरी के लिए हम लोग एक स्लॉट लगा दिया मान लीजिए कि सो दैट द स्टूडेंट शुड यूज द लाइब्रेरी, शुड यूज द फैसिलिटीज, शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. अगर वो बच्चा नहीं करता है तो एज अ मेंटर मैं वो यूज कर सकती हूँ, मेरा हक. तो वो आधा घंटा जो मुझे मेरे बच्चों के साथ मिलता है वो मैं यूज करूंगी ताकि वो बच्चे का पूर्ण विकास हो. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. इज इट ओके टू यू ऑल? मेरी बातें सबको समझ ही नहीं, बट कुछ हद तक क्या आप इससे सहमत हैं? किसी को यहाँ पे कुछ ऐड करना है? ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच. अब मेरे पर्सनल फेवरेट एंड लास्ट टाइम आल्सो व्हेन आई हैड टॉक्ड अबाउट मेंटरिंग, सबसे हम सबका जो मेंटर मुझे लगता है इस भगवान श्री कृष्ण. नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट, जस्ट थिंक ऑफ इट as two individuals who had that bond of friendship, that bond of trust, loyalty. अर्जुन को श्री कृष्ण पे ना कि पूरा भरोसा था, पर उनके ऊपर उसे इतना विश्वास था that yes, he is going to show me the right path. This is the individual who is going to tell me how I win this war. और हमारी जिंदगी में अगर एक व्यक्ति, अगर कोई ऐसा हो जो हमें अगर लगता है ना कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं, अटक गया हूं, तो कौन आता है आपकी आंखों के सामने? मे बी योर पेरेंट्स, मे बी आपके टीचर्स, मे बी योर फ्रेंड्स. वो जो एक इंसान, आप अगर आंखें बंद करते हो 1 मिनट के लिए और सोचते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कौन मेरी मदद कर पाएगा, और जिस एक इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है, probably he is your mentor, he is your friend, he guides you, he advises you at every step. And let me tell you, he does not interfere, does not force, आपके ऊपर जोर जबरदस्ती, नहीं तू यही कर, तू ऐसा ही कर, ये ना करते हुए आपको ऑप्शंस देता है आपके सामने. करके देखो, हो सकता है इससे तुम्हें फायदा मिले, हो सकता है कि तुम इसमें फिट बैठ जाओ. अगर नहीं हो सकता है तो वो आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इस राह पे चलते हो तो आगे चल के आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. और जब हम उन कठिनाइयों को पहचान लेते हैं तो शायद हम उनके ऊपर मात करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं. And therefore we have to aim that we have to mentor in a way so that we have to gently guide and advise the students at each and every step. And therefore I truly believe in the quotation given by John Crosby that mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction. बच्चा आपके पास आता है तो खाली स्लेट होके आता है. सो आप उस गीली मिट्टी को किस प्रकार से आकार दे रहे हैं. यू हैव अ ब्रेन टू पिक, लेट क्रिएट, इन्फ्यूज आइडियाज इनटू द ब्रेन. यू आर एन ईयर टू लिसन. हमेशा बच्चा आपके पास आता है, ही मे टेल यू द प्रॉब्लम्स, समटाइम्स कुड बी पर्सनल, समटाइम्स कुड बी प्रोफेशनल, and you have to listen to those ideas, and after listening to them, give them a little push in the right direction. That's what mentoring is all about. And this particular slide or the screenshot I have taken from UGC's NEP 2020, that why is it so important for teachers to improve the quality of service. See, as a teacher we have to keep on evolving. इसीलिए हम लोग refresher programs करते हैं, बहुत सारे faculty development programs करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू जाते हैं, सो दैट हम जो भी हमारे हायर एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है. आप में से काफी लोग नैक
के कामों में काम करते होंगे, आईक्यूएसी का हिस्सा होंगे, अपने कॉलेज के काउंसलिंग सेल में काम करते होंगे, हो सकता है आप में से कोई एडमिन को मदद करता हो इन मे बी अकाउंट्स कीपिंग, could be any you could be in charge of some cell, could be any number of things. हमारी ड्यूटीज जो हैं बहुत धीरे 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 बढ़ रही हैं, उसका दायरा बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ एक टीचर का जो रोल है वो भी चेंज हो रहा है। हमसे जो एक्सपेक्टेशंस है, सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स की, और सिर्फ इन दोनों की ही नहीं, तो हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट होता है, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हमसे चेंज हो रही है। सो द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट और कॉलेज एक्सपेक्ट्स कि आप टीचिंग के साथ साथ कुछ और भी रोल प्ले करें। आपका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, आपकी जो साइकोलॉजी है, इफेक्टिव पेडागोजिकल टेक्निक्स, कोविड के दौरान हम सब ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, पर हमने उस पे मात भी की। हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बच्चों को सिखाया, नए नए तरीके इस्तेमाल किए सो दैट टीचिंग लर्निंग हमारा इफेक्टिव रहे। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय द टीचर्स टू इम्प्रूव कि हाँ भाई मेरी सर्विस जो है, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स हमारे कस्टमर्स है इवेंचुअली, राइट? और जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, क्या वो पूरी तरीके से इफेक्टिव है, एफिशिएंट है? क्या मेरे बच्चे इसके बाद एम्प्लॉयबल बनेंगे? इफ नॉट, कहाँ कहाँ पे गैप रह रही है, और उन गैप्स को मैं कैसे भर के निकालता हूँ, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं सेशन के एंड में ये पीडीएफ का लिंक शेयर करूंगी, आप जरूर वो एनईपी 2020 एंड मेंटरिंग का पूरा जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं यूजीसी ने, उसके थ्रू जाइए, आपको उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। Now, in today's date, in this day and age, a mentor-mentee relationship is even more important. Why? Because students के पास इतने सारे options हैं। बच्चा जब एडमिशन के लिए आता है ना पहले दिन, तो वो देखता है कॉलेज में प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटी होती है क्या, फीस कितनी है, कौन से टीचर्स हैं, क्लासेस रेगुलरली होती है क्या, कैंपस का टाइमिंग क्या है, लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, ऑल दीज थिंग्स दे चेक। उनके पास एक ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम लोग कपड़े की दुकान में जाते हैं, यहाँ पसंद नहीं आया तो कहीं और जाएंगे, यहाँ वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, probably somebody else is giving me a discount, तो मैं वहां जाऊंगा। स्टूडेंट डायलेमास, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है, करियर के चॉइसेस हैं, पर उनको वो चॉइस में से भी सही चॉइस को कि ओके दिस इज फॉर मी, मैं ये कर सकता हूँ। हो सकता है किसी का बिजनेस हो, किसी का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में हमें कोई ऐसा सारथी चाहिए जो बच्चे को सही राह पे दे पाए। सो मेंटर वांट्स यू टू मेक प्रॉमिसेस एंड कीप दोज प्रॉमिसेस। मेंटर हमेशा यही कोशिश करेगा कि ओके, तुमने आज मुझे ये प्रॉमिस किया है, आज मान लीजिए मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट में मुझे सेकंड क्लास मिला है, आई हैव स्कोर्ड से मे बी 50%, and the mentor makes a promise from me that in the next semester I will score above 60, and he will ensure कि आप वो प्रॉमिस निभाएं, और वो प्रॉमिस निभाने के लिए आपको वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। दैट्स व्हाट अ मेंटर इज। And because I said that they have a n number of problems, social touch नहीं है, आप रास्ते पे देखेंगे सब लोग कट्टे पे खड़े हैं, पर हर कोई अपने मोबाइल में है, राइट? सो दे डोंट हैव दैट सोशल टच, उनकी खुद की आइडेंटिटी कहीं तो भी लॉस्ट हो गई है, पीयर प्रेशर है, सोशल मीडिया है। सो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और इसमें हमको क्या रोल प्ले करना है, लेट अस गो अहेड। और आप सोच रहे होंगे कि शायद में बी वी हैव टू मेंटर ओनली स्टूडेंट्स। नो, we have to mentor newly inducted teachers as well,
जो आज मेरे कॉलेज में एक मान लीजिए 10 12 15 जितने भी CHBs आ रहे हैं, एडहॉक फैकल्टीज आ रहे हैं, वो मेरे इंस्टीट्यूट के लिए नए हैं, उनके लिए मेरा इंस्टीट्यूट नया है. So, as a senior member of the teaching staff, it is my responsibility to act as a mentor to the newly inducted teachers. और इसीलिए जब इंडक्शन प्रोग्राम किया जाता है फॉर न्यूली इंडक्टेड टीचर्स, उसमें दक्षता नाम का एक प्रोग्राम है यूजीसी का, गुरु दक्षता, जिसमें मेंटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना गया है. सो इन दिस सेशन हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, टीचर्स एंड मेंटर्स फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज पार्ट वन. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस हाउ वी कैन डेवलप आवर सेल्व टू बी मेंटर्स फॉर न्यूली इंडक्टेड टीचर्स. तो जो भी नए नए टीचर्स आ रहे हैं, उनके लिए मैं मेंटर कैसे बन सकता हूँ. सो जो NITTR है, चेन्नई का हो गया, भोपाल का हो गया, wherein they have this mentoring program, and they ask for suggestions, they ask for people to join them as mentors so that they will be able to help the newly inducted teachers. Okay, क्या आप में से किसी के कॉलेज में ऐसा कोई प्रोग्राम है जो CHBs एडहॉक फैकल्टीज के लिए आप रन करते हैं? Anybody? In anybody's college, you can unmute and yeah, somebody unmute. Rajesh Sonkuste जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी जी नहीं उसे आपके इसमें होता है प्रोग्राम ऐसा फॉर न्यूली इंडक्टेड टीचर्स? हेलो मैडम। यस सर. हमारे कॉलेज में इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है मैडम, जब कभी भी न्यू सेशन चालू होता है, CHB की अपॉइंटमेंट्स होती है, तो Great. प्रिंसिपल सर एक मीटिंग लेते हैं, उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, सीनियर लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जूनियर को, Okay. और सर का इंस्ट्रक्शन रहता है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है सीनियर से आप कंसल्ट करते रहना है, जैसे भी Great. प्रोग्राम अगर कुछ ऑर्गेनाइज करना है जूनियर लोगों को, तो एज अ मेंटर सीनियर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा रहता है सर, हर एक सेशन में रहता है जब कभी भी सेशन स्टार्ट होता है। सेशन स्टार्ट होता है तो एक हाँ। मीटिंग होती है जहां पे सबका इंट्रोडक्शन किया जाता है. लेटर ऑन ऐसा कोई 1 हफ्ते का या 15 दिन का कोई ऐसा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स या प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है इन नए इंडक्टेड टीचर्स के लिए कि नहीं? नहीं मैडम, वो तो नहीं है, लेकिन हमारे पास मेंटर मेंटी स्कीम है एज पर यूर सजेशन, नैक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो करेक्ट. मेंटर मेंटी की जो मीटिंग है हर मंथ के एंड में 2-3 दिन होती है, और ओके. बच्चों से इंडिविजुअली पूछा जाता है उनके, और घर पर भी विजिट किया जाता है, उनके पापा मम्मी करेक्ट. से भी कंसल्ट किया जाता है, और वो हम राइट. रिकॉर्ड रखते हैं मैडम नैक के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, सिर्फ नैक के हिसाब से नहीं. और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपका कॉलेज उनके घर पे विजिट करता है. आजकल ये ट्रेंड बोलिए या बहुत ये चलन है कि बच्चे काफी बार घर पे चीजें बताते नहीं हैं. बोलते हैं हम कॉलेज जा रहे हैं, पर बच्चा कॉलेज तक नहीं पहुंचता है, वो कहीं तो भी बीच में अटक जाता है. तो जब हम पेरेंट्स को मिलते हैं, उनसे प्रॉब्लम्स बताते हैं बच्चे से रिलेटेड, कि आगे चल के उनकी क्या राय है कि बच्चे ने क्या करना चाहिए. समटाइम्स पीयर प्रेशर में आके बच्चा कुछ और डिसीजन ले सकता है, तो शायद उसके पेरेंट्स मानते नहीं हैं या उन्हें प्रॉबेबली उस चीज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है. सो एज अ मेंटर हम उन्हें वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. ग्रेट सर. कौन से कॉलेज से हैं आप? मैं शिंदे, नीलकंठ राव शिंदे कॉलेज भद्रावती चंद्रपुर से हूँ मैडम। बहुत ही बढ़िया सर, आपकी ये एक्टिविटी है. ग्रेट एफर्ट्स टेकन बाय योर इंस्टीट्यूट. और ये सभी कॉलेजेस ने इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि एटलीस्ट में भी 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, अगर हम पेरेंट्स हम तक नहीं पहुंच पाते हैं पेरेंट टीचर मीट के दौरान, तो क्या हम उन बच्चों तक पहुंच पाए, उनके पेरेंट्स तक पहुंच पाए, उनकी प्रॉब्लम्स समझ पाए. तो जो मैं आगे चल के काउंसलिंग की भी बात कर रही हूँ, तो वो भी हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकता है. सो ग्रेट. कमिंग बैक टू द मेंटरिंग ऑफ न्यूली इंडक्टेड टीचर्स, तो आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to suggest to your institute to start a program for CHB, not a meeting,
एटलीस्ट 3 डे का कोई वर्कशॉप लीजिए जहां पे आप ही के कॉलेज के जो सीनियर लोग हैं, जो न्यूली इंडक्टेड टीचर्स हैं, उनको कुछ टिप्स, टेक्निक्स, कॉलेज के बारे में जानकारी दे पाए, सो दैट इवेंचुअली them as teachers they will be effective in their performance. कैसा करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे. Why I emphasized on this is because our job is to teach the students we have. इसके ऊपर कोई हमारा जोर नहीं है. मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं तुमको मैं टीच नहीं करूंगा, नहीं नहीं यू आई डोंट लाइक यू. Not the ones we would like to have, not the ones we used to have, those we have right now, all of them. हम एज ए टीचर, मैं भी ऐसा करती हूँ. मैं बोलती थी नहीं यार पहले के बच्चे बड़े अच्छे थे, they were quite friendly, they were quite disciplined. पहले के बच्चे में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते थे, बातें सुनते थे. आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, मजा नहीं आता इनको सिखाने में. बट वी डोंट हैव अ चॉइस. जो है हमारे सामने, जो हमारी प्लेट में परोसा गया है, वो हमें खाना है और तृप्ति करके खाना है, मुंह बना के नहीं. As a mentor, therefore I might have people from variety of backgrounds. Now national education policy has given us so many things. It's going to be merging of colleges, it's going to be merging of students from a variety of backgrounds. हमको multidisciplinary चीज आ जाने वाली है. हम बच्चों को चॉइस देने वाले हैं टू चूज फ्रॉम वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. एंड देयरफॉर फर्स्ट मेरे पास वो नॉलेज होना चाहिए टू हैंडल ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या हो, आई शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग श्योर दैट यस आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर फॉर दिस. तू आ बेटा मेरे पास तुझे आंसर मिल जाएगा. अगर मुझे नहीं पता है तो मैं पता करके जरूर तुझे बताऊंगा. So whatever students that I have with me, I am going to make sure that I give them my 100%. That's what our job is going to be. So the ultimate question comes at what does it take to be a mentor? एक mentor बनने के लिए लगता क्या है क्या भाई ये चीज? नथिंग. जो हम कर रहे हैं वही चीजें हैं. सबसे पहला तो है कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ लेट मी टेल यू. आप बोलेंगे मैम आप ये क्या बात बता रही है, हम टीचर्स हैं, हमको क्या कम्युनिकेशन नहीं आता है? बिल्कुल आता है. कम्युनिकेशन के साथ साथ हमें ये देखना है दैट एंड आई हियर दिस वेरी ऑफन फ्रॉम स्टूडेंट्स कि मैम हमें इसे फलाने फैकल्टी से बात करने में डर लगता है. क्यों डर लग सकता होगा बच्चों को फैकल्टी से बात करने में? जरा यहाँ पे थोड़ी चर्चा की जाए, थोड़ा मजा आया जाए. आप आपके कॉलेजेस के विदाउट टेकिंग नेम्स यू कैन टेल मी द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव जब बच्चे आप तक आते हैं और बोलते हैं कि हमें से XYZ फैकल्टी से बात करने में डर लगता है. एनीबडी? Yeah, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Ma'am, the reason could be the student may not be able to connect to that faculty in a proper way. Yes, absolutely true. So they're not able to connect. Maybe वो जो पहला हम लोग बोलते हैं ना spark, yes, connection, वो नहीं बैठता है. Yes, absolutely true. What else? And secondly, the student may not be comfortable with the faculty or their solutions. The problems may not be addressed properly, or they might not receive the solution from the teachers. Yes, yes. So maybe one bad experience, वो कोई प्रॉब्लम लेके गए, हो सकता है वो फैकल्टी तब बिजी हो, अच्छे मूड में नहीं हो, उसके खुद के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी ना हो, और उसकी वजह से प्रॉबेबली वो बच्चे के साथ जिस टोन में बात किया, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, प्रॉबेबली उसकी वजह से बच्चे को लगा नहीं यार इट्स बेटर मैं 2 हाथ दूर रहूं, और मेरी प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व की नहीं. So let me not go to that faculty and talk to them. When I am a mentor, एक क्लासरूम सेटिंग और एक मेंटरिंग का सेटिंग अलग है. पहले तो आप ये समझ लें. I don't know how it is done in your colleges. I teach to MBA students. So for MBA एक तो हमारा इनटेक जो है कम रहता है. आपकी केस में हजारों बच्चे रहते हैं.
तो ऐसी केस में क्या किया जाए? क्लासरूम में जब हम जाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारा एक सिलेबस होता है, आज मुझे लेसन प्लान के हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ. So this is my lesson plan जो probably I have distributed it among my students और उसके हिसाब से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. As a mentor मेरी सेटिंग ही अलग है. क्लास में मेरे 100 बच्चे, 400 बच्चे, 200 बच्चे नहीं हैं. मेरे पास सिर्फ मेरे अपने बच्चे हैं जो मेरे मेंटीज कहलाएंगे. मे बी 35 या 30. मेंटर मेंटी रेशियो हम लोग बोलेंगे 1:30 या मे बी 35, मैक्स टू मैक्स से 40. तो अगर मैं ये रेशियो मेंटेन करती हूं तो वहां पे इफ से जनरली आई एम अ पर्सन जिसकी आवाज थोड़ी मोटी है या मे बी माई बॉडी लैंग्वेज लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, as a mentor I will try to modify them. I will try to make myself more approachable to those students. And when I say communication skills, I talk about my body language, I talk about my tone, I talk about my pitch, I talk about all those little things जो बच्चे को मेरी तरफ खींचे. सी इवेंचुअली हमको सिर्फ, मैं फिर से दोबारा ये चीज दोहराऊंगी, एम्फसाइज करूंगी कि सिर्फ नैक रिकॉर्ड्स के लिए मेंटरिंग को प्लीज मत लीजिए. आप इसको बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं अगर आप इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचें. और अगर आपको लगता है कि मे बी आई नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन दिस, हम कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके साथ साथ गुड लिसनिंग स्किल्स. सी द स्टूडेंट कम्स टू यू मे बी विद अ प्रॉब्लम, मे बी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना मेंटर का काम नहीं है. मेंटर का काम है उसके दिमाग को, जैसे मैंने बोला, ब्रेन टू पिक, चालना देना है, स्पार्क क्रिएट करना है. क्रिएटिविटी अगर कोई बच्चे की होगी उसे प्रोत्साहन देना है. हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा डांसर है. आप आजकल फेसबुक रील्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे इतने फेमस हो रहे हैं लोग, आप तो देखते ही होंगे. हर 2-3 रील के बाद वो काचा बादाम वाला गाना बजता है. आजकल गोविंदा वाला रील ज्यादा चल रहा है. पीपल आर डांसिंग ऑन ट्यून्स. सो इफ यू हैव समवन कि जिसके बाद भाई बहुत अच्छा स्किल है, आप उसको प्रोत्साहन दीजिए, बताइए कि तू ये कर सकता है. कोई मेहंदी आर्टिस्ट हो सकता है, कोई रंगोली आर्टिस्ट हो सकता है. बच्चों के पास बहुत स्किल्स हो सकते हैं. सो लिसन. सो जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कुछ एक्टिविटीज जो आप आपके एकेडमिक कैलेंडर में पूरा मेंटरिंग का एक स्लॉट डाल सकते हैं और उसके हिसाब से सब लोग वो एक्टिविटीज ले सकते हैं. सो हैविंग गुड लिसनिंग स्किल्स ऑलवेज हेल्प्स. Ability to understand problems and find alternatives. As a mentor, I need to find alternatives. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है? A little bit of psychology will also help you. If you understand psychology, if you understand what are the problems an individual faces, it might help you. आजकल Udemy पे, an academy पे छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं शॉर्ट टर्म काउंसलिंग के वगैरह. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं into maybe starting your own counseling center later on in your college, तो आप ये छोटा मोटा कोर्स जरूर कीजिएगा. कोर्सेरा पे काफी से कोर्सेज हैं. नहीं तो आपको फुल टाइम अगर इसमें आना है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग का डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं. एम्पैथी, यू नो, बीइंग एम्पैथिक टू व्हाट द पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग. क्या हो सकता है बच्चे के मन में. एंड एबिलिटी टू कीप द स्टूडेंट्स एंगेज. देखिए आज जैसे मोइनुद्दीन सर ने कहा कि यू नो महीने में या एंड में हम लोग 2-3 महीने में एक आध बार मेंटरिंग का सेशन लेते हैं. ऐसा न करके क्या आप लोग हफ्ते में 2 बार मेंटरिंग के सेशंस ले सकते हैं? ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स का ही सेशन लीजिएगा. If the students enjoy them, they will come again and again to these sessions, and you will actually be able to, you know, solve their problems. Not only solve their problems, but maybe organize some workshops, maybe come out with some startups, जिससे आपके कॉलेज को भी फायदा होगा और स्टूडेंट्स को भी. एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन. एज अ मेंटर मुझे पता होना चाहिए कि किसी फलाने इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है,
या अगर मैं बीसीसीए की फैकल्टी हूं तो कोई लैंग्वेज, कोई कोडिफिकेशन किस में ज्यादा आजकल डिमांड चल रही है. इफ आई एम अ साइंस फैकल्टी, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोबेबल करियर ऑप्शंस which are available to my students. So according to your stream, according to the subject that you teach, आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी उतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. And good networking skills. I'm sure all of you must be on LinkedIn, right? आप लोग LinkedIn पे हैं? I नहीं think मैम नहीं. अगर नहीं है तो आप Yes, ma'am. जरूर, या जो है ग्रेट, नेटवर्किंग बढ़ाइए. जितना आप दूसरे कॉलेजेस के लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखेंगे, आप रिक्रूटर्स के भी कांटेक्ट में आ सकते हैं. अगर हमारे ग्रुप में से कोई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है अपने कॉलेज का, उसका तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना ही चाहिए. आजकल हर कोई लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो गया है. और इसीलिए हम हमारे बच्चों के लिए नए कोर्सेज क्या आ रहे हैं, दूसरे कॉलेजेस में क्या कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, सर्टिफिकेशंस क्या क्या अवेलेबल है, हम हमारे बच्चों के लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स डेवलप कर सकते हैं. इसीलिए हमारे लिए नेटवर्किंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है. एज अ मेंटर यू हैव टू बी आउट देयर, be there in the space so that आपसे लोग कनेक्ट हो और वो इंफॉर्मेशन आप बाकी लोगों तक पहुंचा सके. So if any one of you is a placement coordinator or a member of the placement committee or maybe cultural committee, तो आप जरूर LinkedIn का इस्तेमाल कीजिए. मैं तो सबको कहूंगी कि आप LinkedIn पे आए ताकि आपको और इंफॉर्मेशन मिलती रहे. So coming back to mentoring in higher educational institutions is obviously beneficial if it is used in the right manner. Let me tell you this. हम मेंटरिंग सिर्फ नाम के लिए एक स्कीम बनाएंगे कि 500 वर्ड्स का हमको एसएसआर में क्या हम लिख रहे हैं, ये तो आपको कहीं से भी कट पेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई भी लिख के दे देगा एंड बात खत्म है. But new teachers need guidance, they need support, they need to upgrade their skills. At the same time, students also need direction, they need support, and they need knowledge. And for this, we have to keep on innovating, revising आर मेंटरिंग स्कीम. कि बस एक बार हमने मेंटरिंग स्कीम शुरू कर दी, मेंटर मेंटीज अलॉट कर दिए, बस खत्म, पेपर वर्क कर दिया एंड वी आर डन विथ. why do only paperwork? Why not do something which is good for us, which is good for students? So कैसा करेंगे हम मेंटरिंग का प्रोसेस? ओके, सो फर्स्ट इज रैपो बिल्डिंग. ओके, यू बिल्ड रैपो विथ योर स्टूडेंट्स. मान लीजिए फर्स्ट ईयर से जैसे मैंने मेंटरिंग शुरू कर लिया, मेरा दीक्षारंभ हो गया, इंडक्शन प्रोग्राम हो गया बच्चों के लिए, एंड आई इमीडिएटली विद द परमिशन ऑफ माय प्रिंसिपल अलॉट द मेंटर्स एंड देयर मेंटीज. आप चाहें तो ये क्लास वाइज कीजिए, आप चाहें तो बैच वाइज कीजिए. अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में हम लोग लैब में बैचेस डालते हैं, तो अगर आपको बैच वाइज करना है तो आप बैच वाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोशिश ये रहेगी कि जो मेंटर मेरा फर्स्ट ईयर में है वो तीनों साल मेरा मेंटर रहे. क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट दैट माई मेंटर शुड बी विथ मी फॉर ऑल द 3 years. मेरा एक बार उससे अगर कनेक्शन बैठ गया है, इट्स बेटर फॉर मी. वो मुझे जानने लगा है, मैं उसे पहचानने लगा हूं, एंड देयरफॉर आई वांट दैट यस, दिस इज हाउ इट शुड बी. I can easily approach that individual. After rapport building, we can go on and move to diagnosis. Okay, मेरा exactly plan of action क्या रहने वाला है? So जैसे मैंने आपको कहा NEP का जो मैं आपको बता रही थी, उन्होंने तो पूरा अगस्त से लेके तो मई तक पूरा कैलेंडर बना लिया है कि in this month what activities can I take, in next month what activities can I take, and we can correlate those with maybe the academic timetable of my college and the university timetable also. So we might have say vacations during Diwali etc. वो time पे भी
मुझे कहीं ना कहीं टच में रहना है बच्चों के। और आजकल तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते ही बनाते हैं। तो अगर मेरे मेंटर्स मेंटीज का एक ग्रुप मेरे साथ बनता है व्हाट्सएप का, उस पे मैं उनके साथ वंस आई नो कि मेरे मेंटीज के क्या एक्सपेक्टेशंस है, सो द फर्स्ट वीक दैट आई एम, मे बी अ मंथ ऑल्सो, दैट आई एम विथ माई मेंटीज, मैं जानने की कोशिश करूंगा उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझसे। So my next question to you is now, how many colleges or institutes take a expectation list from the student in the beginning of the session? मेरा कॉलेज लेता है मैम, Great, अंबेडकर कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज। great, great. और क्या क्या लिखते हैं मैम बच्चे एक्सपेक्टेशंस में? कि उन्हें क्या-क्या करना है, मतलब जॉब करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है, उनकी क्या इच्छा है तो वो लिखते हैं। उनकी जो Okay, प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली है वो फेस कर रहे हैं वो लिखते हैं। great, मतलब हमको जितने स्टूडेंट दिए जाते हैं 20 वगैरह, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट लिखते हैं और कुछ बताते हैं कि हमारी सीए की क्लासेस होती है तो हम कॉलेज नहीं कर पाते हैं। कर पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, और कोई जॉब भी करते हैं तो उनका वो भी प्रॉब्लम है कि वो क्लासेस नहीं कर पाते, कॉलेज में नहीं आ पाते। करेक्ट, करेक्ट। अब ये जब चीजें जैसे मैम ने कहा, पुत्तेवार मैम ने, कि हमें जब ये चीजें पता चल जाती हैं कि मेरे से 20-25 या 70 बच्चे जितने भी मुझे अलॉट हुए हैं, उसमें से 10 बच्चे भैया कॉलेज अटेंड नहीं करने वाले हैं। तो क्यों नहीं करने वाले हैं? तो प्रोबेबली बिकॉज बच्चा वर्किंग है। वर्किंग क्यों है? प्रोबेबली उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। कोई बच्चा सीए के क्लासेस कर रहा है, मतलब मुझे पता है उसका प्रोबेबली ध्येय वहीं पे है। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई शुड डू फॉर दैट चाइल्ड? मे बी उसको मैं बताते रहूंगी कि यूनिवर्सिटी फॉर्म के डेट्स आ गए हैं, अगर स्कॉलरशिप फॉर्म्स के डेट आते हैं तो मुझे उसको वो इंफॉर्मेशन देनी है। कॉलेज में जब क्लियरेंस आता है, एडमिट कार्ड्स आते हैं, या कॉलेज में कोई प्रोग्राम है जहाँ पे उसका रहना जरूरी है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, प्रोबेबली वाइवा चल रहा है किसी चीज का जहां पे उस बच्चे की अटेंडेंस कंपलसरी है, ऐसी सब चीजें मैं उसे बता पाऊंगा। जब हम एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं बच्चों के, और काफी बार बच्चे लिखते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने में डर लगता है, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं है, या प्रोबेबली मैं बोलूंगा, मेरा बच्चा मुझे बताएगा that I want to become an entrepreneur, मेरा घर में ऑलरेडी बिजनेस है और उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब मेरे पास ये लिस्ट बन जाती है ना, एक चेकलिस्ट बन जाती है, अब उस हिसाब से, अब मान लीजिए कुछ कॉमन पॉइंट्स, मान लीजिए आपका एक क्लास में कितने बच्चे रहते हैं जनरली? 400, 500, हाउ मेनी फर्स्ट ईयर में? 150 मैक्सिमम। 150। अब 150 बच्चों में मान लीजिए हमने डिवाइड कर दिए देम इनटू डिफरेंट मेंटर्स, एक 5-6 मेंटर्स मिलके कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल गए मेरे। ठीक है, ये 5-6 बच्चों के मेंटर्स ने यही उनको दिया है कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है। अब इसके आगे मैं क्या करूंगी इस लिस्ट का? व्हाट कैन आई डू once I get this feedback, once I get these expectations, what can I do? जिनका इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉब्लम है उनको तो इंग्लिश के जो टीचर है उनसे मिलवा कर, उनके जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं स्पीकिंग के ऊपर, उनसे हम कांटेक्ट करके उनको वो प्लेस, मतलब उनको वो अवेलेबल करके देते हैं। अभी Correct, तो हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट आ नहीं पा रहे कॉलेज में, correct, वर्किंग या कोरोना के correct, कारण। correct, और हमारे गूगल क्लासरूम भी है, व्हाट्सएप है ग्रुप, हर के मेंटर के अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं। correct. तो हम सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम्स आए हैं, मान लीजिए मेरे 120 बच्चों में से 70 बच्चों ने मुझे ये प्रॉब्लम बताई है कि मुझे ये चीजें चाहिए। 3 चीजें बताई, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिकली, और एंटरप्रेन्योरशिप। अब इन 3 चीजों पे
मैं एक तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स डेवलप कर सकती हूँ 30 घंटे का, जो मेरे क्राइटेरिया 1 में मुझे नैक में मैं दिखा सकती हूँ। मैं वर्कशॉप अरेंज कर सकती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के अंतर्गत, जो अगेन मैं नैक में क्राइटेरिया 3 में दिखा सकती हूँ, और इसके साथ साथ मेरी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ हम उनको इंग्लिश टीचर्स के पास मिला के या उनको कोई चीज दे के हम ये नहीं करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है। हम जो जो लोग बोलते हैं ना एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो हम नैक में भी आके चल के AQAR या SSR में बताते हैं कि ये इशू था, इस इशू को हमने रिजॉल्व किया, या इस इशू के ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। तो विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, विद कंसेंट ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, you can organize a small 2-day 3-day workshop for the student. You can have some additional certification, जिसको हम लोग बोलते हैं value added programs for your student. अब 120 में से 70 बच्चों ने भी ये बोल दिया है, अब मान लीजिए फर्स्ट ईयर के ही बोला है, अब 1 to 3 years, अब आप हर ईयर के बच्चों के प्रोग्राम्स निकाल लीजिए। हो सकता है आपके 500 बच्चों में से 300 बच्चे हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है, तो आप तो आराम से 7 दिन का एक आधा वर्कशॉप या प्रोग्राम चला सकते हैं, एंड यू कैन इजीली टॉक टू देम अबाउट दीज थिंग्स, हेल्प देम। आप बाहर से फैकल्टी मंगा सकते हैं, कोई एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं, या विद इन द इंस्टीट्यूट ऑल्सो अगर आपके पास कोई फैकल्टी होगी, इनके यूज से आप ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रन कर सकते हैं, एंड दिस विल नॉट बी ओनली बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टू द इंस्टीट्यूट। सो मेंटरिंग प्रोसेस जो है, अगर हम लोग थोड़ा सा सोच के कि ओके दिस इज व्हाट कैन बी डन, तो आपको नैक के लिए भी बहुत मदद होगी, एट द सेम टाइम आपके स्टूडेंट्स की मदद होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बार बच्चे ने ये बात बाहर फैला दी कि यार यहाँ पे मेरी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी, एंड यू विल गेट मोर एडमिशंस, यू विल गेट गुड स्टूडेंट्स, और आपके कॉलेज का जो गुडविल है, आपके कॉलेज का जो नाम है, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेंटर मेंटी सेल जो है या मेंटरिंग सिस्टम जो है, अगेन मैं आपको बताऊं, एक विद्या भारती कॉलेज है, वहां का मैंने उनका मेंटर मेंटी सेल का देखा। वंडरफुली दे हैव जॉटेड डाउन ऑल द थिंग्स, उनके वेबसाइट पे भी है वो। इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हाउ दे हैव एंश्योर्ड कि मेरे मेंटर मेंटी सेल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। सो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, अटेंडेंस को इम्प्रूव करना, स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेशियो मिनिमाइज करना, रेगुलरिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, जैसे सर का कॉलेज करता है चंद्रपुर का, पेरेंट्स को जाके मिलते हैं, लेटिंग देम नो अबाउट द परफॉर्मेंस एंड रेगुलरिटी ऑफ देयर वार्ड्स एक्सेट्रा। ऐसे कुछ सैंपल ऑब्जेक्टिव्स है। अगेन ये विद्या भारती महाविद्यालय के मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। टू ब्रिज द गैप बिटवीन मेंटर एंड मेंटी, प्रोवाइडिंग म्यूचुअल सपोर्ट, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, स्ट्रेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एकेडमिक नहीं है, थोड़े अलग अलग इश्यूज लिए हैं, जैसे नंबर 3 का जो इशू है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर नंबर 6 का इशू है स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, then academic involvement in assessing the outcome. So आप भी आपके कॉलेज में जब मेंटरिंग सिस्टम अगर ऑलरेडी डिजाइंड होंगी, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से फ्रेम करके रखिए, so that we can eventually work on each and every objective, और उसके साथ हम आगे बढ़ पाए। सो जैसे मैंने कहा, नैक क्राइटेरिया 2 में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, एक्टिविटीज, रिलेशनशिप एंड करियर ऑप्शंस। क्राइटेरिया 5 में जब हमें बच्चे का प्रोग्रेशन टू हायर एजुकेशन दिखाना होता है या प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का रिकॉर्ड दिखाना होता है, तो पहले साल से जो मेरा मेंटर बन जाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चा, मान लीजिए मेरे पास मैंने 30 बच्चे रखे हैं, तो इन 30 बच्चों का रिकॉर्ड जो पूरा मेंटर रखेगा।
सो क्राइटेरिया 5 में जब मैं रिकॉर्ड मांगूंगी कि ओके तुम्हारे 30 बच्चों में से कितने बच्चे अगर मान लीजिए बीकॉम या बीबीए के हैं तो क्या कर रहे हैं, आगे चल के एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, कुछ बच्चों को जॉब लग गई है, तो उनका ऑफर लेटर भी लाना वो मेंटर की जिम्मेदारी बन जाती है। सो ऐसा करके आपके नैक के क्राइटेरियाज के भी काम हल्के होते जाएंगे। एट द सेम टाइम वो बच्चा जिस मेंटर के साथ जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ रहेगा। एलुमनाई में जब इंटरेक्शन होता है यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन काउंट ऑन दैट स्टूडेंट कि बच्चे तू आ जाना, और वो बच्चा आपके बिकॉज ऑफ योर गुड मेंटरिंग प्रैक्टिसेस वो आपके एलुमनाई मीट में, आपके जब एलुमनाई इंटरेक्शन होता है नैक पीयर टीम के साथ, वो आपके कॉलेज के बारे में डेफिनेटली अच्छा ही बोलेगा कि यू नो ही विल टॉक अबाउट हाउ दैट मेंटर ने उसको कैसे पूरे 3 साल अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया, डायरेक्शन दिया रिगार्डिंग इस करियर, बिकॉज आपके रिलेशनशिप जो हैं इतने अच्छे डेवलप हो गए हैं आपके स्टूडेंट्स के साथ दैट दे ऑलवेज टॉक गुड अबाउट यू। एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज टॉकिंग गुड अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू टेक फॉर द स्टूडेंट्स। क्या मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है? इज इट ओके टू एवरीवन? एम आई मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Great. So let us move ahead and let us talk about the impact of mentoring on student satisfaction survey। जब हम SSR सबमिट कर देते हैं और हमारा student satisfaction survey जाता है, ऐसे टाइम पे हमारा मेंटर मेंटी का जो नेटवर्क होता है वो बहुत अच्छे से हम लोग इसको आगे ले सकते हैं। We can talk about how this feedback कि बच्चे आपको ऐसा करना है, so whatever daily messages that you talk to them, whatever internship opportunities that you provide, whatever certifications you help the students with, किन किन extra curricular activities में आप बच्चों के साथ participate करते हैं, उन्हें intercollegiate activities में provide करते हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं satisfaction survey में reflect करेंगी कि नहीं? आप मानते हैं इस बात को? यस मैडम। Yes, madam. Yes. It definitely banks on कि okay ये मेरे साथ इन्होंने अच्छा किया है, I am going to do good to them. It's like a give and take relationship sort of a thing. I may sound very crude at this point of time, but ये सच्चाई है। आप बच्चे के साथ अच्छे से बात कीजिए, उसको उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। इफ यू डू दैट, दैट स्टूडेंट इज बाउंड टू हेल्प यू, that student is going to talk good about you, that student is going to refer you to some other students। वो अपने जूनियर्स को जब जाते हुए बताएगा, अरे नहीं फलाने मैडम या फलाने सर बड़े अच्छे हैं, आप कोई भी दिक्कत हो तो उनसे आप जरूर मदद मांगिएगा। Can happen and it does happen always। So let us think ahead and we have to learn through our hand, hair, heart and head. Because Winston Churchill probably said this very, very nicely. I love learning, but I hate to be taught. I hate being taught. So we have to, not teach them here in mentoring session. तो क्या क्या एक्टिविटीज लेने हैं? तो पहले साल में जो बच्चे आते हैं हमारे पास, हम उनसे पहले तो 1 महीना आइस ब्रेकर एक्टिविटीज ले सकते हैं। आप गूगल कीजिएगा सिंपली आइस ब्रेकर एक्टिविटीज फॉर फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे एक्टिविटीज की लिस्ट मिल जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग, according to the nature of the institute that you are in, according to the likes and dislikes of the students and your own self, आप वो आइस ब्रेकर चूज कर लीजिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, आप एक्सपेक्टेशंस के लिए आजकल तो गूगल फॉर्म हर कोई बनाता है, एक छोटा सा गूगल फॉर्म बना लीजिए। पूछिए बच्चे को कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, महीने में वो कितने बार मिलना चाहेगा, कितनी देर के लिए मिलना चाहेगा, किस प्रकार से मिलना चाहेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। स्वॉट एनालिसिस उसके बाद उस बच्चे का हमको करना है। स्वॉट एनालिसिस के जो टेम्पलेट्स हैं वो गूगल पे इजीली अवेलेबल है। स्वॉट एनालिसिस हमने इसलिए करना है बच्चे का, सो दैट हमें पता चले कि उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कहाँ पे हैं,
ताकि हम उस वीकनेसेस के लिए, जैसे मैंने कहा ना, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कुछ। अगर नई वर्कशॉप, तो एज मेंटर मैं छोटे छोटे उनके वीकनेसेस रिमूव करने के लिए एक्टिविटीज ले सकता हूँ, राइट। स्ट्रेंथ्स को और एनहांस करने के लिए उनको सर्टिफिकेशंस बता सकता हूँ, और उसी की मदद से उन्हें कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज मैं दिला सकता हूँ। सो स्वॉट एनालिसिस का भी एज ए मेंटर हमें ये करना, और मुझे लगता है हर इंस्टीट्यूट ने, हर मेंटर ने स्वॉट एनालिसिस अपने बच्चों का कराना ही चाहिए। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने फर्स्ट ईयर के बच्चों का टुवर्ड्स में भी से आफ्टर 6 months ये करते हैं स्वॉट एनालिसिस? एनीबडी? मैडम हमारी जो मेंटर की टीम बनती है फर्स्ट ईयर में, ओके, जैसा आपने बताया कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है थर्ड ईयर तक है, तो हमारे पास वो कैरी ऑन होते हैं। फर्स्ट ईयर के करेक्ट, स्टूडेंट सेकेंड ईयर जाने के बाद कैरी ऑन होते हैं, किसी दूसरे को हैंड ओवर नहीं होते। नहीं और होते। जब वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आफ्टर 2-3 months SWOT होता है, शॉर्ट एनालिसिस होता है, उसके ऊपर फिर डिस्कशन होता है, और ग्रेट, उसके थ्रू हमारा चार्ट आगे चलते रहता है मैडम। और आप ग्रेट, जैसा बताए कि आफ्टर थर्ड ईयर पास आउट स्टूडेंट, whether he or she take the job and all things are there, या we have carry out after that also. ग्रेट, ग्रेट। क्योंकि क्या होता है, ये एक बार ये रिलेशनशिप बन गया ना, सो दिस कैरीज ऑन। वो बच्चा आपसे टच में रहेगा ही रहेगा। मे बी ही विल कम एंड आस्क यू कि ओके, आफ्टर शुड आई टेक दिस जॉब, इट इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम माय होम, माय पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग। अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मेंटर यू कैन गिव हिम अ हेल्पिंग हैंड। सो स्वॉट एनालिसिस जो जो जहां नहीं होता होगा, तो आप ये जरूर इंक्लूड कीजिए आपके मेंटरिंग सिस्टम में, इट विल बी बेनिफिशियल। अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए हम करियर गाइडेंस से रिलेटेड वर्कशॉप्स, एक्टिविटीज ले सकते हैं। तो क्या क्या एक्टिविटीज ले सकते हैं हम? अब जनरली बच्चा जो सेकेंड ईयर में होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर उसको आगे कुछ करना है, जैसे लॉ के लिए हो गया, या फिर एमबीए के लिए हो गया, या इफ यू वांट्स टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, तो आपके कॉलेजेस में अगर कोई सेल्स होंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई सेल है, या करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई सेल है, इन सेल के अंतर्गत आप ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां पे आप उन बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम्स कैसे क्रैक करना, उससे रिलेटेड कोई क्लासेस ले सकते हैं। या आप जीडी ग्रुप डिस्कशंस को कैसे हैंडल करना, पर्सनल इंटरव्यूज कैसे, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आंसर करना, टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, उनका रेज्यूमे बराबर है कि नहीं है, उनको कवर लेटर लिखना आता है कि नहीं है। ऐसी सब एक्टिविटीज हम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एज अ मेंटर, अगर मान लीजिए कोई और नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा। एज अ मेंटर आई कैन डू इट फॉर माई 30 मेंटीज। बाकी लोग आके जुड़ना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप विद द प्रिंसिपल्स परमिशन यू कैन टेक इट ऑन अ बिगर लेवल। आप चाहें तो इसको इंटर कॉलेजिएट ओपन कर दीजिए बाकी कॉलेजेस के बच्चों के लिए भी, एंड मेक इट अ बिग इवेंट जहां पे करियर गाइडेंस से रिलेटेड, उनके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप इश्यूज हैंडल कर सकते हैं। आजकल एमसीईडी, एमएसएमई ये कॉलेजेस के साथ टाई अप्स कर रहे हैं, ताकि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जो जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उनके बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। सो ऑल दोज एक्टिविटीज कैन बी टेकन फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। और फिर जो कॉमन इश्यूज होते हैं जो हम तीनों सालों में चला सकते हैं, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ऐसे सब इश्यूज हम ऑल द 3 years आराम से हम लोग चला सकते हैं। एंड मेंटरिंग हैज टू बी अ कंटिन्यूअस एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स। So far so good. Is my speed okay? Should I move ahead? Yes, madam. Yes. Great. And what more activities can you do with your students? Creating vision boards with your mentee. That is sharing personal and academic professional goals. अब आप हर एक मेंटी के साथ एक विजन बोर्ड क्रिएट कर लीजिए।
ना, इट कुड बी व्हाट्सएप पे छोटा सा उसने एक इमेज भेज दिया आपको, या फिर हो सकता है आप उस बच्चे को पैडलेट पे कुछ बना पाए, अगर फेसबुक पे उसने कुछ टाइम सीरीज बनाई है जिसपे आपको वो ऐड करना चाहता हो, तो आस्क हिम टू मेक अ विजन बोर्ड, सो दैट अगर वो बच्चा बोलता है कि आज मुझे आई एम नॉट गुड विथ कॉमर्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, इवन दो आई हैव टेकन एडमिशन, बट मुझे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, सो हम उसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आजकल तो बच्चे ऐसा बात करेंगे नहीं ज्यादा कि मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है एंड ऑल, बट इफ एट ऑल द पर्सन सेज मे बी आई वांट टू पार्टिसिपेट इन अ डांस कंपटीशन, या मे बी द स्टूडेंट वांट्स टू से कि मैम या सर हम कोई स्किट करते हैं जिसको हम लोग पथनाट्य बोलते हैं, या कोई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइन, आस्क देम टू मेक अ टाइमलाइन कि ओके बाय दिस टाइम तुम्हारे पास स्पॉन्सर्स हैं क्या, क्या तुमने फ्लायर बनाया है, तुम इसको इंटर कॉलेजिएट करना चाहते हो क्या, ask them to talk to other faculty members, जितना हम चाहे उसमें वैरायटी ला सकते हैं, and this is a great way to kickstart a new year and know your mentee better. vision boards first year के बच्चों के साथ create करना, it's going to be a wonderful activity. और क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो बुक क्लब्स, बिकॉज आजकल बच्चे बुक्स पढ़ते नहीं हैं, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर लाइब्रेरियन इन हैविंग अ बुक क्लब। मे बी सिर्फ आप आपके मेंटर मेंटी ग्रुप को एक नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैंने मेरे मेंटर मेंटी ग्रुप का नाम दे दिया लेट्स टॉक, या फिर स्वच्छंद, या फिर मैंने बात कर दिया मैं और तुम, तो मैं और तुम बुक क्लब इन दी लाइब्रेरी, सो आप लाइब्रेरियन मैम को बोल सकते हैं या मैं और तुम नाम पे आप हमें कुछ अच्छे बुक्स में भी मोटिवेशनल समथिंग विच इज फन ऐसा कुछ कर दीजिए। अगर आपको कोई लगता है कि वेब सीरीज ये बहुत अच्छी है, बच्चों ने इसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप वो वेब सीरीज के कुछ एपिसोड्स कॉलेज में देख सकते हैं बच्चों के साथ। यू कैन चैट अबाउट लोकल फूड, अबाउट कल्चर्स, एक दिन करके देखिए बहुत मजा आता है और बच्चे इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। I remember when I was a student, my mentor Dr. Sujit Maitre, he used to take the entire college during Navratri to Koradi पैदल, सब लोग माता मंदिर जाते थे पैदल, एंड द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट ईच एंड एवरीवन डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट वॉक वाज वंडरफुल। करके देखिए, आपके आजू बाजू में कोई पार्क होगा, छोटा सा कोई मंदिर होगा, अगर आपको उसको रिलीजियस फ्लेवर नहीं देना है तो पार्क लीजिए, म्यूजियम लीजिए, कोई लोकल फूड कोई अच्छा बनाता होगा, अगर कोई स्ट्रीट होगी फूड से रिलेटेड, आप वहां पे उन बच्चों को लेके जाइए। अगर आपको मॉनेटरीली कुछ नहीं करना है कि जहां बच्चों को पैसे खर्चे करने पड़े या आपको पैसे खर्चे करने पड़े, तो आप कल्चर्स के बारे में बात कर सकते हैं, weekly meetings to talk about their weekly activities etc. there can be, जितना आप सोचेंगे उतना आपके लिए नए नए आइडियाज मिलते जाएंगे, जहां पे you can have wonderful things you can do with your mentees। यहाँ पे क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि आप क्या एक्टिविटीज करते हैं आपके mentees के साथ? Anyone? Whatever activities that you do, ये सब हम बैठ के गप्पे मारते हैं तो भी चलेगा। मैम हमारे कॉलेज में सारे सेल है। हेलो मैम। जी मैम। तो उसमें ईडी सेल है, सीईजीसी सेल मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सेल है, प्लेसमेंट सेल है। तो हम ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। अभी मैंने 3 दिन का वर्कशॉप लिया, हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप, वाओ, वेरी गुड, टेक्सटाइल होम फैंटास्टिक। मिनिस्ट्री के साथ। हाँ, टेक्सटाइल होम मिनिस्ट्री के साथ। तो कम से कम 4 to 500 स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया। वाओ वाओ, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट काफी एफर्ट्स अच्छा मैम। हमने उसमें कॉम्पिटिशन्स किए हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, और हैंडीक्राफ्ट का जो भी इम्पोर्टेंस है, यदि नौकरी नहीं मिलती है तो एंटरप्रेन्योर राइट, कैसे बनना है, इसके ऊपर भी हमने, यानी बाहर से गेस्ट आए थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने भी बहुत सारा उनको गाइडेंस किया, यानी आईएएस ऑफिसर आए थे, उन्होंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्रैक करना उसके ऊपर गाइडेंस किया। मतलब ये हमारे कॉलेज में साल भर चलता ही रहता है कंटिन्यूसली। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो व्हेन जब ये कनेक्ट हो
जाता है बच्चों के साथ, it becomes a wonderful thing. Revati madam was trying to say something. Ma'am? Ma'am, as I am a coordinator of BCCA department, so Okay. ये सेल्स तो मेरे कॉलेज में है ही, बट सेल्स के बावजूद मैं अपने BCCA यानी IT से रिलेटेड क्या दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज तो कॉमर्स कॉलेज है. सो Correct. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं क्या करूँ. जैसे IT के लिए अगर जाना है तो टैली जरूरी है, तो फिर मैंने टैली कंपनी से MOU किया है. बढ़िया. हाँ, उसमें कॉमर्स के भी बच्चे आते हैं और BCCA के भी आते हैं. देन उसके बाद में फाइनल ईयर के बच्चे जब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो मैं डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाती हूँ, जिसमें एटलीस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं इंटरव्यूज के वो, और Yes. रिज्यूम राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग वो उन्हीं से करवा देती हूँ. और एक फॉर्मेट उनको सेव करके रखने के लिए बोलती हूँ कि इसी को आपको यूज करना है. Great. तो Great. अच्छा, हाँ, फिर कुछ सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स भी मैं अपनी तरफ से कन्वर्ट, मैंने मैं डिपेंड नहीं कि वो सेल उनका है तो वो सेल वाले करेंगे. सो मैं अपने हिसाब से भी अपने डिपार्टमेंट में ये सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करवाऊँ. ग्रेट. यही बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए कॉलेजेस में नैक की वजह से हर आजकल कोई सेल आ ही गया है. ईडी सेल रहता है, करियर काउंसलिंग सेल रहता है, प्लेसमेंट सेल रहेगा. सेल्स तो रहेंगे और वो सारे एक्टिविटीज करते भी हैं. बट एज अ मेंटर मेरे 30 बच्चे और मैं, ऐसा हमको सोचना है. मेरे 30 बच्चों की क्या जरूरत है और वो जरूरत मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ. हाँ, अगर कोई सेल के अंतर्गत कोई कार्यक्रम हो रहा है, मैं वहां पे बच्चे फिट करा सकता हूँ, वेल एंड गुड. बट जैसे मैंने ये कहा, वीकली मीटिंग्स, यार मे बी हैविंग अ बुक क्लब, मे बी टॉकिंग टू देम अबाउट समथिंग विच इज कम्प्लीटली न्यू. इसीलिए मैंने कहा जब आप लिंक्डइन पे जाते हैं, दूसरे कॉलेजेस के बारे में चर्चा होती है या आपको और कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है कि हाँ, जैसे मैडम ने कहा BCCA डिपार्टमेंट के हैं, टैली की बहुत जरूरत है. वैसे ही जब आप रिक्रूटर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि बच्चे को ये आना चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए, राइट. जब मुझे ये चीजें पता चलती हैं तो मेरा इंडस्ट्री कनेक्ट बढ़ता है एंड एट द सेम टाइम मैं मेरे जो मेंटीज हैं उनको मैं डेवलप करती हूँ. सो सिर्फ सेल्स के ऊपर ना रखते हुए कि हाँ हमारे कॉलेज में तो ये वर्कशॉप्स होते हैं, ये एक्टिविटीज रेगुलरली होती ही है, ग्रेट, वेरी गुड, होनी ही चाहिए. बट इसके साथ साथ रिमेंबर, आपके 30 बच्चे और आप, ये इक्वेशन चलना चाहिए हमेशा. Asking them about, and I'm emphasizing on books and all, because the more they read, more knowledge and information they will get. So you can do this activity. Now mentoring to teachers, which is again extremely important. When it comes to mentoring teachers, who can mentor teachers, who can mentor new teachers? Somebody who is probably experienced, say more than 15 years of experience, maybe more than 20 years of experience, maybe. So it has to be a formal training, not just 1 or 2 meetings, maybe a 3-day, 1 week training program wherein you understand their needs. What are their needs when they have joined? तो हम उनको रिसर्च के बारे में बताएंगे, हम उनको पेडागोजी के बारे में बताएंगे, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स which can be used, how to make lesson plans, how to adhere to those lesson plans, what kind of resources are used from the library, what kind of things a person can do to ensure that his service to the students is effective, giving them monthly or weekly feedback which is constructive, not criticism. We are going to do, अरे तुम्हारी तो आवाज ही नहीं पहुंचती है लास्ट बेंच तक, बच्चे तो हमेशा बोलते रहते हैं, तुम्हारी क्लास में बहुत आवाज होती रहती है. That's criticism. When we talk about giving a constructive feedback, we talk about telling them about maybe you can try and improve more on your tone or on your pitch. Maybe you can make use of a mic if it is permissible. So all those kind of constructive feedbacks could be given, and you have to give them support and support and guidance without interference. See, eventually he or she is also a teacher, even though a CHB may be newly recruited, newly inducted, but is a teacher. So we have to give them the same amount of respect that they deserve, and at the same time give them proper guidance and support.
maybe in organizing a workshop or a program. So what are the things that you know कि okay हमको क्या क्या चीजें लगती हैं, give them a checklist that these are the things, ये हमारे कॉलेज की नियम है, परंपरा है, this is what we do in our college, ये सब आप उनको बता सकते हैं. So support and guidance without interference has to be done. When we mentor to the newly inducted teachers, it becomes extremely important to tell them about the new things that are there in the syllabus. Maybe new skills also they might need to acquire. So promoting them in say faculty development programs, जो पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग वाला इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे रामानुजन कॉलेज है दिल्ली का, वहां पे जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलते हैं, मूक्स जो है उनको रिसोर्स कैसे बनाना है, इसके लिए आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें इन डेवलपिंग दोज ई रिसोर्सेज व्हिच कैन बी eventually an addition to your institute, and maybe getting grants for research projects, etc. So mentoring to teachers also has to be an important aspect of the mentoring system. कोई यहाँ पे कुछ और किसी को ऐड करना है that what you feel about mentoring to the newly inducted teachers? Anybody? Would you like to share your experiences कि हाँ जब मैं join हुआ था तो मुझे ये चीज नहीं पता थी. I'll share my experience first. So when I joined, I did not know, valuation का क्या process होता है, etc. So Dr. Sarita Karangutkar was the one who told me कि मुक्ताई है असं असं करावं लागतं. This is the way you have to value, and this is how you have to put marks. This is how you have to do the totaling. पेन रेड पेन होता था, कैसे यूज किया जाता था. She taught me about moderation also. So you need someone who tells you about these small little things. Otherwise कभी कभी शर्म भी आती है ना पूछने के लिए कि यार इतनी छोटी चीज है कैसे पूछूं, how should I ask? It becomes very awkward, sometimes embarrassing also for us. So when you have that mentor with you, someone to tell you these do's and don'ts, it becomes very easier. Would someone like to share their own experiences? Anyone? यस मैम बताऊँ? जी जी बिल्कुल. मैं मेंटर के लिए कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि दूसरे फैकल्टी के भी स्टूडेंट आके मतलब मेरे क्लास में बैठ जाते हैं। हाँ. जैसे मैंने एनवायरनमेंट के लिए मेरे मेरी जो मेंटी थे, उनको लेके जा रही थी जंगल सफारी। हमारे कॉलेज के पास ही छोटा-सा जंगल है और उनको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ वगैरह और ना रहने से क्या हो सकता है, कैसे टेम्परेचर बढ़ सकता है अपने अर्थ वगैरह वो समझाने में। लेकिन क्या हुआ कि सभी के बाकी का फैकल्टी के भी स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं मैडम, मेरे साथ यही एक्सपीरियंस। और वर्कशॉप भी लेती हूँ या उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो बाकी फैकल्टी के स्टूडेंट आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा। करेक्ट, विच मीन्स यू आर क्वाइट अप्रोचेबल. आप बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स लेते हैं, बच्चों को आप अच्छे लगते हैं, एंड देयरफॉर अदर स्टूडेंट्स आल्सो माइट वांट टू जॉइन यू. दैट इज वंडरफुल. दैट हैपेंस अ लॉट. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हम हमारे मेंटीज के लिए कुछ करते हैं और बाकी के भी मेंटीज हमारे साथ एडजस्ट हो सकते हैं. सो दिस इज वेरी गुड. यू कैन डू दैट. ऐसी सिचुएशन में आप दूसरे मेंटर को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि दिस इज हम आपके भी मेंटीज को लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब परमिशन की वगैरह बात आती है, अगर रिटर्न परमिशन वगैरह लगती होगी तो आपके पास भी क्या आ जाता है कि ठीक है, आई एम टेकिंग योर मेंटीज आल्सो. अगेन कमिंग बैक टू मेंटरिंग टू टीचर्स, न्यूली इंडक्टेड टीचर्स जो हैं, that we can organize separate programs for them. One could be on say effective teaching techniques or pedagogies, or effective tools and techniques, making lesson plans, etc. And second could be the behavioral component, जिसको हम लोग बोलते हैं communication skills, interpersonal skills. उनको बताना कि आपको भी आगे चल के बच्चों को मेंटरिंग करना है तो वो कैसे करना है, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट टेक्निक्स क्या होते हैं. सो ये सब छोटी छोटी चीजें आप इसको डिवाइड कर सकते हैं से 1 मंथ पीरियड में, और छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप आपके न्यूली इंडक्टेड टीचर्स का मेंटरिंग प्रोग्राम ले सकते हैं. Now, coming to a very, very important question. I know I have 10 minutes of time. I won't exceed that. Before we end up the session,
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट काउंसलिंग. अब आप सोचेंगे काउंसलिंग करना काउंसलर्स का काम है, जो रजिस्टर्ड काउंसलर्स होते हैं उनका काम होता है काउंसलिंग करना. जा जो लोग जिन्होंने साइकोलॉजी की डिग्री ली है, सर्टिफाइड है, यस ट्रू, एब्सोल्युटली आई एग्री. But as teachers, we automatically become counselors. क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है तो एडमिन स्टाफ, टीचर्स, हमारे पास बच्चा आता है, मेरा फॉर्म नहीं भरना जा रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम आ गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, मेरे को रैगिंग हुई है, या कॉलेज में वॉशरूम क्लीन नहीं है, या पार्किंग में कोई डिफिकल्टी आ गई है, बाहर लोग झगड़ा कर रहे हैं. सो वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. Now, the purpose of having counseling programs or counseling centers in the colleges is to introduce basic counseling ideas and skills for responding to the students' psychological, emotional, and developmental issues. See, जैसा मैंने कहा मेंटरिंग का एक सिस्टम होना चाहिए, तो वैसे ही हम टीचर्स के लिए में भी साल में एक बार 2 बार हम एक छोटा सा काउंसलिंग का सेशन ले सकते हैं, wherein a certified counselor can come and train us, give us some tips and techniques to identify कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जिन जिन कॉलेजेस में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो कॉलेज तो आराम से काउंसलिंग सेंटर चला सकते हैं. टाइमिंग फिक्स किए जा सकते हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी ही कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे काउंसलिंग सेंटर में. उसके पहले क्या मैं जान सकती हूँ क्या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा कॉलेज है जिनका खुद का काउंसलिंग सेंटर है? तन्विन जी बोल रही हैं आपका काउंसलिंग सेंटर है? हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा काउंसलर आते हैं, हफ्ते में 3 मतलब है. ओके, आपके यहाँ काउंसलर्स आते हैं. यस, दैट कुड बी अनदर मेथड कि आप काउंसलिंग सेंटर खोलें और वहां से बाहर से आपके यहाँ काउंसलर्स हफ्ते में 1 बार 2 बार आके बैठे और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करें. अगर आपको लगता है कि आपको ये ना करते हुए यू एज अ काउंसलर, अब आप देखिए हम तो सर्टिफाइड काउंसलर्स है नहीं, तो हम उसको काउंसलिंग ना कहते हुए हम उसको गाइडेंस सेंटर कह सकते हैं, wherein you can counsel them, guide them, but not offer them certain solutions. जहां पे आपको लगता है कि जैसे मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि जो टीचर काउंसलर है, ओके, बिकॉज हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जैसे 911 कॉल दबाया, सो द फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो लेडी होती है, वो 911 इमरजेंसी कॉल सुनती है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, एंड देन she sends somebody to solve that problem. So you can listen to the problem, and if you feel that the problem is too big, then you can refer to somebody else. कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे हैं जो हम अभी कर रहे हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास है. दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है when it comes to counseling is respect and trust. अब हम ये जानबूझ के नहीं करते हैं, पर हो जाता है कि हम बच्चों की प्रॉब्लम्स दूसरे टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं. As a counselor, the first thing that comes to our mind is when we respect that individual, you have to keep it confidential also. आप बच्चे ने आपके पास आके इस विश्वास के साथ आपको बात बताई है कि वो बात बाहर नहीं जाएगी, स्टाफ रूम में किसी को नहीं पता चलेगी, and therefore you have to keep it confidential. Whatever the problem the students tells you, again I am telling you, counseling is different from mentoring. If you are acting as a counselor, that person comes to you with a specific problem. Mentoring overall. Counseling में मुझे जैसे मैंने I come to you saying that lately I am having too much of stress these days. मला ना झोप नहीं लागत किंवा या सर मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होता है, मुझे कॉलेज में आने के बाद घबराहट होती है, मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ मेरी जुबान ही नहीं चलती है. So all those little things, if he comes to you and tells you, you can offer him certain tips and techniques if you know. इसीलिए मैंने आपको जब मेंटरिंग में कहा नेटवर्किंग स्किल्स, अपडेट योर इंफॉर्मेशन. आप जितना पढ़ेंगे आपको उतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी. और मैं तो सबको अर्ज करूंगी, हर एक टीचर को, कि एक छोटा मोटा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम काउंसलिंग स्किल्स के ऊपर आप जरूर कीजिएगा. एंड बीइंग नॉन जजमेंटल. The person can come and tell you that I slapped somebody. हाँ तुमने मार दिया, how could you do this? Be non-judgmental.
Keep your body language very calm, your facial expressions very calm. Okay, why did you beat him? What happened? Let it come from him. Let it be non-judgmental and go ahead with it. What are the red flags now? अब प्रॉब्लम कब आती है? जब बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, बार बार आपके पास आता है, लैक ऑफ बाउंड्रीज, कभी भी आपको कॉल करता है, आपके साथ अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करता है कि नहीं आप मेरी बात अभी सुनो, आपको बोलता है मुझे आपसे रोज मिलना है। जब ये होने लगता है, मतलब द स्टूडेंट इज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन यू, दैट इज अ रेड फ्लैग। वो टाइम पे आपको स्टॉप करना है। एंड देयरफॉर हैविंग knowledge of psychology and counseling is extremely important. सुसाइडल थॉट्स, अगर कोई बच्चा आपको लग रहा है सेल्फ हार्मिंग हिमसेल्फ, कटिंग होता है, पुअर पर्सनल हाइजीन है, उसका कंसंट्रेशन, बाकी के भी टीचर्स आपको बता रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, ऐसे टाइम पे यू कैन गेट इन टच विद दैट मेंटर एंड द मेंटर कैन फाइनली गेट इन टच विद द फैमिली मेंबर। ऐसा आप काउंसलिंग सेंटर चला सकते हैं। मैं आपको फिर भी ये सलाह दूंगी कि आप काउंसलिंग सेंटर को करियर काउंसलिंग से ही रिलेटेड रखें। अगर हम इसको थोड़ा सा बिहेवियरल की तरफ जाते हैं या हमको थोड़े से डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं, तब आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कॉलेज में कोई काउंसलिंग सेंटर चलाना है तो आप उसको करियर काउंसलिंग सेंटर के नाम से चलाइए, जहां पे आप बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, आप छोटे छोटे जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जैसे कि MBTI टेस्ट हो गया, स्वॉट एनालिसिस हो गया, या आपने उसके कोई और सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड टेस्ट की, छोटे छोटे जो उसको करियर में आगे बढ़ाने के लिए काम में आएंगे। उसको मान लीजिए आपने गाइडेंस किया अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, या आपने उसको काउंसिल किया रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर, वैसा आप विदाउट एनी प्रॉब्लम्स करियर काउंसलिंग सेंटर आप आपके कॉलेज में चला सकते हैं। So we have to, remember and learn how to respond to the students' neediness and unreasonable requests. जो असेसमेंट होता है वो तो हम नहीं कर सकते हैं, वो जो क्लिनिशियंस ही कर सकते हैं। आपका रोल एक गाइडेंस कोच का है, एक इंस्ट्रक्टर का है, बस उतना हमने करना है, रिकॉर्ड्स रखना है हर चीज का, और किसी भी स्टूडेंट के साथ ओवर इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं रखनी है। कभी कभी हम उनके प्रॉब्लम्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग वी ट्राई टू बी वेरी सब्जेक्टिव। एज अ काउंसलर वी हैव नॉट टू बी सब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिवली ही उनकी प्रॉब्लम्स को डील करना है। करियर काउंसलिंग सेंटर कैसा हो? सो एक कंफर्टेबल सीटिंग, आपके कॉलेज में कोई एक छोटी सी रूम जहाँ पे एक कंफर्टेबल सीटिंग हो, क्वाइट प्लेस हो, कंसिस्टेंट टाइमिंग रखिए। जैसे आप मान लीजिए सैटरडे चलाना चाहते हैं तो हर सैटरडे, अगर कॉलेज आवर्स के बाद या कॉलेज आवर्स में आपके जो फिक्स टाइम है, तो कंसिस्टेंट रखिए उसको। सब बच्चों को पता हो फर्स्ट ईयर से लेके तो फाइनल ईयर तक कि हमारे कॉलेज में ऐसा एक करियर काउंसलिंग सेंटर है जो अप्रोचेबल है एवरीबडी के लिए। एंड आप उनके पास टेम्पलेट्स है, एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक रजिस्टर हो, फॉर्मेट हो, और उनके मीटिंग्स का, बिहेवियर का, उनके स्किल्स लर्न का आपके पास रिकॉर्ड हो। आप चाहें तो इसके लिए फीस भी रख सकते, कुछ नहीं, 10-20 रुपए, 50 रुपए, अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट शुड टेक इट वेरी सीरियसली तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज इट कुड बी अ free service to the students also. So, and eventually we want the students to feel safe. We want the student to develop his or her counseling so that बच्चा खुद अपने thoughts को सुने, समझे कि मुझे आगे क्या करना है। आपके सेंटर को नाम दीजिए, एक अपनापन आ जाता है। जैसा मैंने कहा, डिफाइन टाइमिंग, सेट द रूल्स, कीप रिकॉर्ड्स, give remarks to each and every student and get signature from the students. इसके लिए आपका पूरा नेक के लिए रिकॉर्ड भी बन जाएगा और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज हो जाएगी। Because eventually we cannot teach people anything, we can only help them discover it within themselves. So let's shine, my friends, and show the way. Thank you so much.
If you have any questions, I'll also be sharing quickly one format for mentor mentee जो आप आपके colleges में use कर सकते हैं. So if you have any questions, please feel free to ask me. मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैडम. हाँ, वो आपने बताया ना 3 दिन का वर्कशॉप लिया तो उसका रिकॉर्ड मतलब वो कैटेगरी 3 वो नहीं समझ में आया मुझे। कौन सा 3 दिन का मैम? वर्कशॉप जो ईडी सेल का बोले आप हैंडीक्राफ्ट या ईडी सेल का। यस यस. तो आप क्या तो कीजिए मैम, उसका ऐसा होता है फॉर्मेट जो हम बनाएंगे ना ईडी सेल का, जो हम आप बोल रहे हैं वर्कशॉप का, तो पहले तो आप ऑनलाइन लिए थे कि ऑफलाइन लिया था? ऑफलाइन कॉलेज में जियो ऑर्गेनाइज किया। जियो टैग इमेजेस हैं इसके? जियो टैग ओके हाँ है जियो. आपने बच्चों का अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा लिया था? हाँ गूगल फॉर्म से। गूगल फॉर्म था तो गूगल फीडबैक फॉर्म फॉर्म. गूगल हाँ, फीडबैक फॉर्म भी लिया गूगल से ही। गूगल से लिया. तो जब आप गूगल के रिस्पॉन्सेस में जाएंगे गूगल फॉर्म के, है ना, तो उसमें पूरे चार्ट्स आ जाते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आ जाएगा, कौन से जेंडर के कितने थे, कौन से स्ट्रीम के कितने थे. हाँ मैम समझ रिपोर्ट बना लिया, ये सब रिपोर्ट मैंने बना लिया। लेकिन यदि अब मेरे पर्सनल यदि प्लेसमेंट के तहत यदि मुझे बनाना है तो उसको कहाँ पे डालना चाहिए, कैटेगरी 2 या 3 वो नहीं। अच्छा, आप नैक में बोल रहे हैं? हाँ ईडी नाक ईडी 3 में आता है मैडम. ईडी और आईपीआर जो है ना, इनोवेटिव हाँ प्रैक्टिसेस में आता है, वो क्राइटेरिया 3 में आएगा. हाँ अच्छा क्राइटेरिया 3 में क्राइटेरिया आएगा ना। 3 में क्राइटेरिया 3 में ईडी, आईपीआर, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, वो सिर्फ क्राइटेरिया 3 में आता है, जिसमें ओके कि आपको जियो टैग इमेजेस, उस प्रोग्राम का आउटकम, एक नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये पूरा देना होता है. जब एक्सेल भरते हैं आप, अपने को आती है ना एसएसआर एक्यूएआर के टाइम, हाँ उसमें भरना पड़ेगा. एट द सेम टाइम आपके कॉलेज की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट आपको चढ़ाना पड़ेगा. उसकी लिंक वहां पे देनी पड़ेगी जब एक्यूएआर और एसएसआर सबमिट करते हैं. ओके हाँ ऐसा मैडम है. रिपोर्ट वगैरह के मैंने अपलोड कर दिया है वेबसाइट पर, लेकिन बस उसके बस आगे की प्रोसेस। वो लिंक आपको बस वहां पेस्ट करनी है और कुछ नहीं. ओके थैंक यू मैम थैंक यू। Yeah, I'm just stopping my screen share so that I can show you the mentoring sheet that I wanted to show. Just a minute. Huh? Meanwhile, if anybody has any questions, please आप पूछ सकते हैं. आपके कॉलेजेस में अगर स्पेसिफिक आपको पूछना है कोई चीज कि हमारे कॉलेज में ऐसी सिस्टम है या आपको शुरू करनी है, तो उसके लिए भी आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. एनीबडी? मैडम जैसा आपने बताया रेड फ्लैग्स, जी अब एक समय ऐसा आता है बच्चों से हम इतना कांटेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक वो वेल अटैच्ड होते हैं, जी जी खास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स। जी और थर्ड ईयर में जब जाते हैं वो, तो कुछ पेरेंट्स उनके मैरिजेस के बारे में सोचते हैं, तो कभी जी कभी वो पर्सनल प्रॉब्लम भी हमें बताते हैं। जी जी अब जैसा आपका ये बोलना था स्टार्ट में कि भी हमें अटैच होना है, तो हम इतने अटैच होते हुए जाते हैं। और जो होते बात हैं. ऐसी आ जाती है कि आपने एक पॉइंट ये भी बोला है कि हम कैरियर तक ही सीमित रहे, राइट. लेकिन बात ऐसी होती है कैरियर से आगे भी चली जाती है, हाँ आगे ही हाँ. जाती है, मतलब उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कुछ ऐसे। तो करेक्ट. इस टाइम पे तो हम उनको ज़्यादा तो कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही बोलते हैं पेरेंट्स जो भी डिसीजन लेते हैं दैट इज़ द ऑफ अल्टीमेट योर। डिसीजन. अच्छा, तो उसमें उनका ये रहता है कि भी हमें और आगे पढ़ना है और आगे उनके एम्बिशंस है एंड थिंग। जी कभी-कभी हम जब मीटिंग में जाते हैं तो पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं कि भी आपके बच्चे क्या चाह रहे हैं और ये सारी राइट. चीज़ें। तो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं हमारे आते सामने। हैं, बिल्कुल आते हैं. और फेस करते भी हैं जब आगे चल के, मतलब आई हैव पर्सनली फेस्ड दिस कि बच्ची नहीं चाह रही थी शादी हो गई. हमने पेरेंट्स से एक बार बात भी की थी कि बच्ची और आगे पढ़ना चाहती है, पर ड्यू टू पीयर प्रेशर, मतलब सोशल प्रेशर, बच्ची की शादी करवा दी गई. 1 साल बाद बहुत बुरा उसको मारपीट करके घर भेज दिया था. और कॉलेज आके बच्ची ने बहुत रोना धोना किया. उसके पेरेंट्स भी आए थे, पेरेंट्स भी मान रहे थे कि गलती हो गई. ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं.
मतलब ये हम बोलेंगे कि हमारी एक व्हाट शुड आई से लिमिटेशन है एज अ मेंटर, कि हम एक हद तक ही सीमित रह सकते हैं। आफ्टर दैट आप बच्चों को यही बताइए कि सी वी कैन नॉट बी योर पेरेंट्स प्लेस, जो भी डिसीजन है, क्योंकि इकोनॉमिक सबकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्पेसिफिकली हमारी इंडियन सोसाइटी में व्हेन इट कम्स टू से मैरिज और व्हेन इट कम्स टू मनी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये कहीं ना कहीं हमारे बातों में, टॉक्स में ये क्लियर करते जाएं कि हमारा रोल इज फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमारा रोल इज फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तब थोड़ी थोड़ी उनको भी, हाँ, बात जरूर करेंगे वो आपके साथ, आपको दिक्कत बताएंगे भी, आप ठीक है सुन लीजिए, एज अ, जैसे मैंने कहा, यू हैव अ ईयर टू लिसन, so be that ear, listen to their problems, but we cannot offer them solutions when it comes to personal problems like say marriage and all. तब हम बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर थोड़ी दिक्कत कॉलेज के लिए भी हो जाती है, हमारे लिए भी हो जाती है। मैडम दूसरा एक क्वेश्चन था, आपने जी जैसा बताया गाइडेंस, मेंटर और काउंसलिंग, जी, वेदर these three things are different or correlated, what is there? they are correlated. They are definitely correlated here, because when we talk about say guidance or we talk about coaching, as I told, gave you examples also, a mentor guides also, a mentor counsels also, but जैसा कि मैंने कहा, काउंसलर का रोल अगर हमें प्ले करना है, वी हैव टू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री। अगर नहीं होते हैं तो हम लोग क्लिनिकल पार्ट जो है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। दैट इज द थिंग दैट वी Okay, कैन। one last question, if madam permit me. Startly you have shows the Krishna Bhagwan and all जी things are there. So जी मैंने बचपन में महाभारत देखा था, जिसमें एक तरफ कृष्ण भगवान थे और जो है सो अर्जुन थे, अर्जुन के साथ पांडवों के साथ कृष्ण भगवान थे, जी और दूसरी तरफ अर्जुन को ही सिखाने वाले टीचर्स अपोजिट पार्टी में थे, जहाँ पे Yes. पितामह भीष्म भी थे और उनके आचार्य भी थे। गुरु द्रोणाचार्य हाँ, थे। तो जी मुझे ऐसा लगता है भाई इधर जो गाइड है कृष्ण भगवान है, और उधर जो गाइड है इनको ही सिखाने वाले गाइड लोग भी उधर थे, तो उनकी हार क्यों होगी? दैट इज द रीजन। that दिस इज आउट that ऑफ द becomes a बॉक्स क्वेश्चन इज philosophical दैट आई question. जस्ट Yeah, that's a philosophical question. Probably some other time. I okay, believe no no Lingesh sir madam, has come. just I am Yeah. asking, no, next time you can give the answer, no problem madam. Yes. Lingesh sir has come, so I won't take much of your time. Good Yes. afternoon, sir. Yeah. Ma'am, thank you so much. I'll Yes. take your leave. Nice session, Muktai madam. Thank you so Thank much, ma'am. Thank you. खूप छान सेशन झाला मॅम. थँक यू सो मच फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपंट्स ऑल्सो. थँक यू मॅडम. you, ma'am. थँक यू. Good afternoon, Dr. Ashish Linge, sir. Am I audible? Good afternoon, madam. Yes, I can hear you. Yes, yes. Good afternoon. Friends, we will proceed to our next session. Today, Dr. Ashish Linge, sir, will deliver a session on the topic emotional intelligence. Sir, can you see share option? Yes, ma'am. Yes. So may I share my Yes, screen now? yes, sir. Yes, sir. Please.